والا ہوں تو جانشین الہی جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. ایک جملہ آپ کے ہدیہ کرنے لگا. ایک بندہ تھا جس کا نام ابراہیم یا عبداللہ اصفہان کا رہنے والا تھا. ایران کا شہر ہے اصفہان. اس کے وہ ہر سال جاتا تھا مولا امام زین العابدین علیہ السلام مولا کی زیارت کے لیے ہر سال جایا کرتا. ایک سال گیا تو اس کی بیوی نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے, اتنا سفر میں تھک جاتا ہے, اتنا پریشانیاں اٹھاتا ہے, امام کے پاس جاتا ہے, کیا لینے جاتا ہے؟ کبھی خرچہ کر کے ہی آتا ہے نا, کبھی کچھ لے کے بھی آیا ہے. عبداللہ نے ہاتھ منہ پہ رکھا, خاموش. ایسا نہ ہو میرا امام مدینے میں بیٹھ کے سن کے ناراض نہ ہو جائے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینے میں بیٹھا امام سنے؟ کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں, میرا امام سننے والا ہے, علم رکھنے والا ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کا جانشین ہے. اللہ کو علم ہے تو خلیفہ کو بھی علم ہوگا. اللہ جانتا ہے تو خلیفہ کو بھی جاننا چاہیے. ایسی باتیں نہ کر. اس نے کہا میں نے بڑے دیکھے ہیں پیر, یہ پیر جو ہے لینے والے ہوتے ہیں, دینے والا پیر کوئی نہیں. اس نے کہا خبردار, میرا پیر دینے والا ہے, لینے والا نہیں. بس جناب سال گزر گیا. اگلے سال جب یہ جانے لگا, اس کی بیوی نے اس کا دامن کھینچا, کہا پھر جانے لگا ہے, پھر اتنی دولت خرچ کرے گا, اتنا سفر کرے گا, اتنی تھکان ہوگی, کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے کہا نا نہ بول, ایسی باتیں نہ کر. جب یہ پہنچ گیا مدینے میں پہنچا تو امام اس کے انتظار میں تھے. امام نے انتظار کیا, تو امام فرماتے عبداللہ آ گئے ہو؟ جی مولا آ گیا ہوں. عبداللہ آج دوپہر کا کھانا تو نے میرے ساتھ کھایا. عبداللہ آج دوپہر کا کھانا, بھائی کسی کو اگر پتہ چل جائے کہ غوری صاحب ذاکر ہیں اور ذاکر صاحب جو ہے یہ کھانا آج مومنین کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے, تو مومنین کتنا فخر کرتے ہیں کہ جناب ذاکر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. بھئی ہم اگر کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کتنا وہ خوش ہوتے ہیں. تو اگر وقت کا امام کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھائے, کیا کہنے. عبداللہ کی خوشی کے انتہا, مبارک بادیں ملی. مولا فرماتے ہیں دسترخوان لگ گیا. مولا فرماتے ہیں ایک لوٹا پانی کا بھر کے لاؤ, عبداللہ آج میرے ہاتھ دھلواؤ. اچھا مولا بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے. امام جو ہے وہ محتاج نہیں ہوتے, امام کبھی کسی کو کام نہیں کہتے, امام خود کرتے ہیں. امام کا کام ہو جاتا ہے. وہ کون کہنے والے ہیں, کون کہتے ہیں ہو جاتا ہے, وہ تو کام ہو جاتا ہے. لیکن مولا نے آج کہا اس لیے کہ اس میں مصلحت تھی. مولا فرماتے آج میرے ہاتھ دھلواؤ. جب ہاتھ دھلوانے لگے نیچے رکھا تاشت, ذاکر صاحب نے نیچے تاشت رکھا, پانی گرایا. مولا فرماتے ہیں ما ھذا, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا پانی. مولا فرماتے غور سے دیکھ, پانی نہیں, در احمر, یہ تو سرخ موتی ہے. یہ پانی نہیں سرخ موتی ہے. کہنا سرخ موتی ہے. تو اس نے دیکھا تشت سرخ موتیوں سے یعنی یاقوت سے بھر گیا. مولا فرماتے اندر رکھو, دوسرا تشت لے آؤ. دوسرا تشت آیا. مولا فرماتے اب دیکھو ما ھذا, یہ کیا ہے؟ اس نے پھر دیکھا تو اس نے کہا ھذا ماء, پانی ہے. تو مولا فرماتے پھر کہہ رہے ہو پانی ہے, پانی نہیں, ذرا غور سے دیکھو, در اخضر, یہ تو سبز موتی ہے. یہ تو سبز موتی ہے. جب کہا نا سبز موتی ہے, وہ سبز موتی بن گئے. تشت بھر گیا. مولا فرماتے لے جاؤ اندر, اس کو بھی رکھو. اب تیسرا تشت آیا. مولا فرماتے پھر دھلواؤ. جب ہاتھ دھلوانے لگے مولا فرماتے اب دیکھو کیا ہے. اب یہ سوچ میں پڑ گیا کہ ابھی پہلے کچھ بن جائے پھر بتاؤں گا. جیسے دیکھا تو کیا گرا, پانی گرا. جیسے پانی گرا تو در ابیض, یعنی سچے موتی بن گئے. سچے موتی بن گئے. مولا فرماتے اسے بھی رکھ دو. آؤ کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھاتے اور سب کھانا کھانے کے دوران مولا فرماتے عبداللہ میری ملنگنی کو سلام دینا. غوری صاحب نے بے غوری کر دی. غوری صاحب مولا فرماتے میری ملنگنی کو سلام دینا. مولا وہ تو موذی ہے, وہ تو دشمن ہے آپ کی. مولا فرماتے نہیں تھی, اب نہیں ہے.
अच्छा, मौला फरमाते हैं कि ये जितनी दौलत है ना, ये सारी ले जाना और जाके हमारी मलंगनी को सारी दौलत देना और उसे कहना हमारा इमाम देने वाला है, लेने वाला नहीं है। देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। बस कहा ये दौलत इकट्ठी की, खाना खाया, लंगर करके चलने घर में जब जाने लगा, आपने तोहफे तोहफ दिए, वापस गया। जब वापस गया तो उसकी बीवी बड़ा मुंह सुजा के बैठी हुई थी। उसने कहा लो आ गया, इतना बड़ा खर्चा करके फिर आ गया। उसने कहा मैंने कहता था कि मेरे मौला वहां बैठे सुन रहे हैं। तो क्या कह रहे हो? सारी दौलत गिराई उसके कदमों पे, हीरे जवाहरात गिरा के। अब्दुल्ला कहता है ये ले तेरी दौलत, और मौला तुझे कह रहे थे मेरी मलंगनी को सलाम देना। जब कहा मेरी मलंगनी को सलाम देना, मेरी चाहने वाली को, कहा मौला को कैसे पता चला? कि कहा जैसे ये पता चला कि तूने बात की है। मौला को पता चल गया। मौला फरमाते हैं ये दौलत उसको देना, उसे कहना कि हमारे इमाम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। और याद रखना तू आज से हमारी है, तो आज से किसी और दर पे न जाना। उसने फौरी तौर पे कलमा पढ़ा और कहा कि दिन गिन गिन के गुजारने शुरू किए। अल्लाह करे जल्दी साल पूरा हो, अब मैं भी इसके साथ जाऊँ। जाके सब जब चले, अगले साल टाइम हो गया, वक्त हो गया, दोनों मियाँ बीवी कल सब चले। जब चले तो मदीने के बाहर, इकराम साहब मदीने के बाहर बीवी मर गई। ज़ियारत के लिए आई है, बीवी गई मर। अब ये परेशान हो गया, चादर ऊपर दी, चादर दे के कहा कि तू तो अब मर गई है, मैंने तुझे ज़ियारत के लाया था, मौला की ज़ियारत करवानी थी, बंदोबस्त करता हूँ, फिर जाके मौला को खुद सलाम करूँगा। मौला के डेरे पे चला गया, बारगाह में चला गया। मौला के बारगाह, इमाम बारगाह यानी इमाम की बारगाह, मौला की बारगाह में गया। मौला उस दिन घर में नहीं थे, बाहर गली में मौला चहलकदमी फरमा रहे थे, कभी इधर जाते हैं कभी उधर। अचानक अब्दुल्ला आया, अब्दुल्ला ने सलाम किया। मौला देख के अब्दुल्ला को कहते अब्दुल्ला अकेले आए हो? कहता मौला अकेला ही आया हूँ। मौला नहीं, मौला फरमा रहे थे जा जा, किसने तुझे कहा वो मर गई है? जा, तुझे शायद अंदाजा ही ना हो, अभी उसने मेरी ज़ियारत नहीं की, वो मर कैसे सकती है? जब वापस जा उसे लेके आ। जब वापस गया, बीवी ने ऊपर चादर ली, बैठी हुई है, अली हक के नारे लग रहे हैं, अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक नारे लग रहे हैं। नारा लगा रही है, मौला की तस्बीह कर रही है। इसने हैरान होकर कहा कि ए बंदे खुदा, हुआ क्या? तू तो मर गई थी। चादर उतार के कहती हाँ बिल्कुल मर गई थी, लेकिन अब्दुल्ला आज अजीब इत्तेफाक हुआ, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं होगा। मेरी रूह जब निकाली ना इजराइल ने, रूह लेके वो पहले आसमान पे पहुंचा, दूसरे पे पहुंचा, तीसरे पे पहुंचा, चौथे आसमान पे जब पहुंचा जहाँ पे अली का एक और घर है, यानी काबा एक और है चौथे आसमान पर। जब वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत नौजवान था। उस नौजवान ने कहा इजराइल कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जी मौला इसकी रूह निकाली है, पहुंचाने जा रहा हूँ। मौला फरमाती है इसकी रूह क्यों निकाली है? कहा जी इसलिए निकाली है कि लोहे महफूज पे इसका टाइम लिखा गया था कि ये मरने वाली है, इसका टाइम। मौला फरमाती है कि जरा देखो लोहे महफूज। अब जो इजराइल ने देखा तो लोहे महफूज पे लिखा था इसकी जिंदगी अभी 30 साल बाकी है, अभी 30 साल। वे हैरान हो गए, हाथ जोड़ के कहता है मौला इसकी तो 30 साल। कहा हाँ हाँ, इसने अभी हमें हमारी ज़ियारत करनी है, और जो हमारी ज़ियारत करे हम उसे तोहफे में 30 साल उम्र देते हैं, जाओ इसे वापस करो। अच्छा अब ये परेशान हो गई, इसने कहा कि तेरा मौला देखना चाहती हूँ। एक तो मैंने देखा इजराइल का मौला, एक मैं तेरा मौला भी देखना चाहती हूँ। अरे साहब कहती है कि एक मौला देखा है इजराइल का, कि जिसे इजराइल ने हाथ जोड़ के कहा था जनाब मैं रूह वापस करता हूँ। अब एक इजराइल का मौला देखा, एक मैं देखना चाहती हूँ तेरा मौला, यानी हमारा मौला अफजल है या वो अफजल है? जैसे घर में गए, जब घर में गए अब्दुल्ला ने सलाम किया, मौला का चेहरा दूसरी तरफ था। ये बार बार
तवज्जो करनी थी कि जिस्म तो वैसा ही है, ये रफ्तार तो वैसी है, ये गुफ्तार तो वैसी है। अचानक मौला ने रुख फेरा, जैसे ही रुख फेरा तो इस अब्दुल्ला की बीवी दौड़ती हुई कदमों पे गिर गई, बोसा दे के कहती अब्दुल्ला ये तो वही नौजवान है जिसने मेरी रूह वापस करवाई। जमानत दी थी एक हरन की, तो वो लेट हो गया, नहीं पहुंची जल्दी। तो मौला ने पूछा लेट क्यों आई है? मैंने तेरी जमानत दी थी, ये मुझे कैदी बना रहा था। उसने कहा मौला मेरे हिरन जो है ना वो रास्ते में मजलिस कर रहे थे हुसैन की, मैं मजलिस सुनने लग गई थी। तो मजलिस जब जिक्र मसाइब हो रहा हो ना तो जानवर भी बैठ जाते हैं, आप तो इंसान। मजलिस का एहतराम, मसाइब में खास तौर पे जल्दी बैठ जाए बीबी। तो अगर किसी जगह पे कोई बंदा मर जाए ना, उसे गुस्ल ना दिया जा रहा हो, कफन ना दिया जा रहा हो, दफन में देर हो, घंटा गुजरे, 2 घंटा 3-4 घंटे, घर वालों को जाके कहता है कि जल्दी क्यों नहीं करते, गुस्ल क्यों नहीं देते, कफन क्यों नहीं देते, दफन क्यों नहीं करते, किस बात की देर है? कोई बुजुर्ग आदमी उसके मुंह पे हाथ रख के कहते हैं आहिस्ता बोलो, इसकी बहन की दूर शादी हुई है, हमने मैयत की बहन को इत्तला कर दी है, टेलीफोन कर दिया, इत्तला कर दी है, अभी थोड़ी देर बाद इसकी मैयत की वारिस आ जाएगी, हम इसे दफन कर देंगे। बस अज़ीज़ान मोहतरम, इधर इत्तला मिलती है बहन को, कभी जाकिर साहब ये इत्तला नहीं दी जाती कि तेरा भाई मर गया, नहीं, इत्तला ये दी जाती है तेरे भाई की हालत बड़ी खराब है, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल में दाखिल करवाया है, बड़े इलाज करवा रहे हैं, लेकिन वो बच नहीं रहा, तेरी मेहरबानी जितनी जल्दी हो सके ना आ जा। इधर बहन के दिल से पूछे, जैसे वो भाई की बीमारी की हालत सुनती है ना तो वो ये नहीं कहती समझती कि भाई मेरा जिंदा है, उसके दिल में हौल उठते हैं, क्योंकि उसको पता चल जाता है ये खून ऐसा है, तो उसको पता चल जाता है मेरा भाई जिंदा नहीं है, अब मेरा भाई, मेरा मायका दरवाज़ा बंद हो गया। अब ये जल्दी से अपने बच्चों की तैयारियां भूल जाती है, अपने सर पे चादर करनी भूल जाती है, दरवाजे बंद करने भूल जाती है, मैके शहर को मुंह करती है, दौड़ पड़ती है, जल्दी से पहुंचती है, इधर मैयत को उठा के, जनाजे को उठा के ना कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं। बड़ा इंतजार किया, लेकिन हर बुजुर्ग देख रहा है कि इसकी बहन ने अभी आना है, अभी थोड़ा लेट कर रहा है, इसकी बहन ने आना है, और मैयतें बहनों के बगैर नहीं सजती, इसकी बहन ने अभी आना है, अभी थोड़ा ज़रा रुकना। सारे कहते हैं इधर से बहन की क्या हालत है, बहन पहुंचती है, सीधी घर नहीं जाती, कब्रिस्तान की तरफ जाती है, सामने मैयत है, जनाजा जा रहा है, हाथ जोड़ के आवाज़ देती है, तो लोगों ठहर जाना, और मेरे भाई को भी दफन न करना, और मैं उजड़ी को आ जाने देना, मैं उजड़ी को मुंह देख लेने देना। अदादारो हर बुजुर्ग, कोई सुन्नी हो, कोई शिया हो, कोई भी हो, किसी मसलब का हो, हर कोई कहता है मैयत रख दो, इसकी बहन आ गई है, इसको रो लेने दो, इसको बैन कर लेने दो, कोई नहीं कहता इसको रोने ना दो, इसको बैन न करने दो, हर कोई कहता खूब मातम कर ले, खूब रो ले, इसके बाद तेरा भाई नजर नहीं आएगा। अदादारो जब ये कहते हैं ना तो अल्लाह की कसम, आदम से लेकर आज तक एक बहन गुजरी है जिसका नाम है ज़ैनब, एक बहन गुजरी है जिसका नाम है उम्मे कुलसूम, जो मक्तल में भाई के लाशे पे आई, रो के कहती है ऐ बहन कुलसूम, मेरा भाई गिरा तो यहीं पे था, मुझे भाई नजर नहीं आता, ये पत्थरों का ढेर है। अदादारो बीबी ने कहा हो सकता है मेरी बहन मुसलमानों ने हमारे ऊपर रहम किया हो, ज़हरा की बेटियां समझ के हमारे भाई को दफन कर दिया हो। अदादारो दोनों बहनों की हालत ये थी, इसी तरह दोनों बहनों को
पसे गर्दन हाथ बंधे हुए थे। दोनों बहनों ने कोहनियों से पत्थर हटाने शुरू किए। कोहनियों से पत्थर हटाती गई। पत्थर जब हट गए, लाशा नजर आया। ज़ैनब रो के कहती है, अंता अखिल हुसैन, क्या तू मेरा भाई हुसैन है? क्या ज़हरा का लाल तू है? क्या अली का लाडला तू है? कटे हुए गले से आवाज आई, हाँ ज़ैनब, मैं ही तेरा भाई हूँ, मैं ही तेरा हुसैन हूँ। तब कहा, मैं ही तेरा भाई हूँ। कहा, अगर तू मेरा भाई है, ऐना रासों का तेरा सर किसने काटा? ऐना खातमों का तेरी उंगली किसने काटी? ऐना लिबासों का और तेरा लिबास किसने लूटा? आवाज आई, करबला की जमीन में ज़लज़ला आया। आवाज आई, ज़ैनब, तूने 3 सवाल किए। ज़ैनब, मैं एक पूछता हूँ, ऐना रिदाओं के और तेरी चादर किसने लूटी? आवाज आई, हाय हुसैन, और तेरी गर्दन का खून बंद नहीं हुआ और शिमर ने नेज़े से लूटी।